Very good morning, my dear students. Today we are about to start the chapter number 5, natural disasters. There are different and distinctive type of disasters, but the disaster which we cannot stop and which is driven by the nature is known as natural disaster. The nature has given us many things. We are made up of nature, you can say that, and every single thing we have is due to nature. Nature is our mother, you can say that, mother nature. We call it mother nature, and nature has got its limits, and it has got its powers also. So when we exceed the line, when we violate the ecosystem, at that time some kind of natural disasters happen. These are you can say that these are man-made disasters, as well as certain disasters are natural. We haven't done anything, but if the tsunami has came, and due to the tectonic plates, due to the earthquakes or any distinctive qualities of nature, something happened, and tsunami came, then there is no reason that we should allegate the humans for that. Or earthquake, these are natural disasters. So what kind of disasters and how severe they can get, and how they affect us, as well as what we can do as humans to stop these disasters, as well as how we can survive these. We cannot stop them, but we can survive through them. Japan is a country that is widely known for earthquakes. Earthquakes come on a daily basis over there because of the active volcanoes. So they make these kind of makeshift homes, or these kind of bamboo homes, which can sustain the earthquake of 7.5 Richter scale. So this is too much, and they make houses in such a format that people can survive through the severe earthquakes. Just as that, many of the countries are living in accordance with the nature. If we violate nature, the nature is going to violate us. Violate, or it can erase us if they want to. We have heard about the jungle fires, heard about tsunamis, hurricanes. You have heard about the Taute. It's a kind of a cyclone. Cyclones, twisters, hurricanes. These are natural disasters. They can अभी आपने कहीं सुना भी होगा कहीं पर, the lightning strikes, thunderstorms. Lightning strikes जो होगी वो कहीं पर भी होंगी, तो it can cause human life. The casualties can be really high and severe. So we are going to talk about natural disasters. On 12th March 2011, Krishna saw the pictures of the tsunami in the newspaper. I mean, 2011, we talk about the word tsunami. Tsunami is a Japanese word, and the T is silent, and we call it tsunami. In the newspaper, after reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper." मैंने न्यूज़ पढ़ी है tsunami के बारे में. How does a tsunami occur? Why tsunami occurs, and how does a tsunami occur? That's a good question. I suggest you people to go to the YouTube and search for tsunami in Japan. So you can see the cars swimming like matchsticks, only because of the power of tsunami, the power of water. The water risen over there within 20 or 20 minutes or so. There was nothing, and then it rose up to 30 to 40 feet. So it was a disaster. People were absolutely in awe, and they were thunderstruck. They thought that what we should do, and they were completely perplexed. They were bamboozled. They never knew that water can reach to their homes where they are safe. But water reached, and it drowned every single thing which came into its way. It is nature's way. The author replied, natural disasters are of two types:
Disasters like earthquakes, we are talking about earthquakes because of the tectonic plates. अब tectonic plates तीन टाइप से काम करती हैं, ठीक है. सम आर डाइवर्जेंट प्लेट्स. डाइवर्जेंट मतलब वो अलग अलग जा रही हैं, वो आगे पीछे जब होती हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. आगे पीछे डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं, जैसे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी प्लेट्स डाइवर्जेंट है, वो अलग 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 टुकड़े हो रही हैं. अब कुछ प्लेट्स होती हैं जो अपने एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, एक के ऊपर एक जब चढ़ेंगी तो माउंटेन्स बन जाते हैं. हिमालय जो रीजन है वो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट की वजह से वो एक के ऊपर एक जब चढ़ी तो ऊपर की तरफ टेथिस सी, वहाँ पे क्या था, टेथिस सी, TETHYS, देयर वाज टेथिस सी ओवर देयर. एंड व्हेन द वन प्लेट climbed onto other, and at that time the Himalaya was risen, और हिमालय वहाँ पे खड़ा हो गया, ज़मीन में से निकल के हिमालय बना. देन आप देखेंगे तो अरेबियन सी, वो भी एक क्रेटर का ही फॉर्मेट है, वो भी एक फॉर्मेट है. उसमें ये भी अर्थक्वेक की वजह से ही डिज़ास्टर्स हैं. और अलग अलग जो आप जिसको बोलते हैं हम लोग जोग्राफिकल कंडीशंस है, उसमें अर्थक्वेक का बहुत बड़ा हाथ है. अब वो अगर वो अलग हो जाएंगी दो प्लेट्स तो क्या होगा, उसके बीच में वैलीज़ बन जाएंगी बहुत बड़ी. तो ये तीन तरीके से काम करती है. एक तो आगे पीछे होती हैं तो अलग अलग भी हो जाती हैं, फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, ठीक है, और तीनों चीज़ें हो रही हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट सुनामी के बारे में रीड कीजिएगा, पढ़ेगा. एंड वल्केनो अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. ये तीनों चीज़ें इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, मैग्मा, लावा एंड ऑल दैट स्टफ. वेरियस डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स, अब जो बाढ़ आती है, पानी बहुत ऊपर से पड़ता है. देन साइक्लोन्स आते हैं. फॉरेस्ट फायर्स जिसके बारे में बात करते हैं. ड्राउट, सूखा, पानी बिल्कुल नहीं है. कैलिफोर्निया इज सफरिंग फ्रॉम अ ड्राउट, तो अभी ये भी एक प्रॉब्लम है. एट्सेट्रा ड्यू अकर टू द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. ठीक है, दो चीज़ें हैं, सर्फेस ऑफ अर्थ, द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एज वेल एज द चेंजेस विद इन द अर्थ. दीज थिंग्स आर important for the natural disasters. Then we should talk about earthquake. The weak upper crust of earth suddenly experiences tremors. अब tremors होते, tremors मतलब हल्के हल्के झटके, either due to collision of plates, या तो अब देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है. The weak upper crust of earth suddenly experiences tremors. झटके बनते either due to collision of plates, या तो plates टकराती हैं, और due to the tremendous pressure in the interior of earth, या फिर इन दोनों के अंदर tremendous pressure create होता है, आपस के अंदर रगड़ होती है. तब waves, tremors of earthquake originate from its hypocenter. जो वो उसके सेंटर में से शुरुआत होती है, जहाँ से वो टकरा है पहली बार तो वहाँ से वेव शुरू होती है. उसे इंग्लिश में एपी सेंटर भी बोलते हैं, EPICENTER, उसको यहाँ पे हाइपोसेंटर भी बोलते हैं. विच इज़ डीप डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, वो अर्थ के सर्फेस से नीचे की तरफ टकराती हैं. सच सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग इज नोन एज अर्थक्वेक. इसीलिए इसको एकदम तुरंत हिलना और तुरंत जो शेकिंग होती है उसको, नेपाल के अंदर बहुत ज़बरदस्त आया था, उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, यू शुड गो फॉर इट एंड वॉच इट. तो आपको यू शुड गेट द आइडिया हाउ सिवियर दीज थिंग्स आर. ठीक है, 2001 में गुजरात में भी तूफान आया था, भुज में. भुज वॉज द एपी सेंटर, और वो एपी सेंटर भुज में था, गुजरात में, और आई वॉज रिसाइडिंग इन राजस्थान. 26 जनवरी को आया था, और मैं राजस्थान में रहता था. एंड ऑन द सेकेंड फ्लोर, आई वॉज स्लीपिंग ऑन सेकेंड फ्लोर. सुबह 9 बजे के आसपास आया था, तो आई रैन अवे, और हमारे घर के अंदर दरारें आ गई थी. इतना, मतलब राजस्थान तक उसका इफेक्ट आया था. मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ मोर देन 800 किलोमीटर्स. अभी मैं जहाँ पे हूँ उससे 800 किलोमीटर्स, और भुज तो उससे भी दूर है, यानी 1000 किलोमीटर्स तक उसका इफेक्ट आया था. यानी भुज के अंदर तो उसने क्या मचाया होगा तूफान. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स. अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपीसेंटर. जो मैंने आपको बोला, एपीसेंटर से वो वेव्स क्रिएट होती हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ. अर्थक्वेक क्यों होता है, इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस में बोलते हैं. अब इसको जब नापा जाता है अर्थक्वेक, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है जिसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल, RICHTER, रिक्टर स्केल. तो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं उसकी पावर, वो नापी जाती है, उसकी सिवियरिटी नापी जाती है एक चीज़ के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिक्टर स्केल. वो रिक्टर स्केल पे 1.2, 5.1. 5.1 तो अभी नॉर्मल्स है, पर 7 के ऊपर वाले तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. 7.1 वाले सब ऊपर ही है. तो जो 7 के ऊपर वाले हैं वो रिक्टर स्केल ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़े थ्रेट हैं. अब इसके काफ़ी लोग ऐसा फोरबोर्डिंग भी करते हैं कि अर्थक्वेक आ सकते हैं, आने की आशंका है. गुजराती में इसको बोलते हैं आँच का.
कई लोग बोलते हैं, बट ज़्यादातर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता अर्थक्वेक में। इसका एक फाइन एग्जाम्पल है, इसके बारे में हमको सिखाया जाता है कि अगर अर्थक्वेक या ऐसा कुछ हो, रम्बलिंग हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो डोर है, डोर का जो एरिया है उसके बीच में खड़े हो जाना चाहिए, डोर की जो फ्रेम है उसके बीच में खड़े हो जाना चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर अर्थक्वेक आएगा और सब कुछ हिलेगा तो ऊपर से स्लैब्स गिर सकते हैं, ग्रेनाइट गिर सकता है, स्टोन्स गिर सकते हैं, मार्बल गिर सकता है, ऊपर से कुछ भी मलबा आपके ऊपर गिरेगा, पंखा है तो वो भी गिर सकता है, ठीक है। पर अब गेट के बीच में है तो कोई सर के ऊपर कोई चीज़ नहीं गिरेगी, ये बात फैक्ट है। तो यू कैन सर्वाइव, आप जिंदा रह सकते हैं। ये इसका एक फाइन एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा सिखाया जाता है। देन वी शुड टॉक अब देखो यहाँ पे प्लेट्स बताएंगे एपी सेंटर कहाँ पर है और उसकी जो हाइपर सेंटर है वो कैसे काम करता है। सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से क्या क्या तूफान मचते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक्स स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर। जो वेव्स हैं अर्थक्वेक की वो आउटवर्ड की, बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ नहीं आती, अंदर से बाहर की तरफ, एपी सेंटर। द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ exactly above the hypocenter focus is known as epicenter. The point on the surface of the earth, जो उसका जो पॉइंट है, अब अर्थ के ऊपर जो हाइपोसेंटर है वो नीचे है, अर्थ के ऊपर जो सबसे स्ट्रेट पॉइंट है जहाँ से वो वेव्स अर्थ के ऊपर जा रही हैं, एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर फोकस इज नोन एज एपीसेंटर, इसीलिए उसे एपीसेंटर बोला जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपीसेंटर, और एपीसेंटर पे सबसे ज़्यादा, सबसे एक्सेसिव आज के आने की संभावना रहती है, आते ही हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपीसेंटर। एपीसेंटर से जितनी दूर चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग उससे बच सकते हैं, पर इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो डिपेंड होते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के ऊपर, कितनी पावर के साथ वो काम कर रहा है। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ अ सीस्मोग्राफ। हम उसकी इंटेंसिटी को नाप सकते हैं अर्थक्वेक की, किसके साथ, जान सकते हैं उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को, हाइपोसेंटर को, विद द हेल्प ऑफ सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से नाप सकते हैं। सीस्मोग्राफ एक ऐसा एलिमेंट है जो उसको सेट करता है। देर आर 3 मेन रीजन्स फॉर द ऑकरेंसेज ऑफ द अर्थक्वेक। अब इसके 3 मेन रीजन्स हैं अर्थक्वेक के। नंबर 1 इज अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन। पहला तो वोल्केनिक इरप्शन से हो सकता है। नंबर 2 अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। स्ट्राइक और स्लिप, स्ट्राइक मतलब आपस के अंदर टकरा रही हैं 2 प्लेट्स, या फिर स्लिप हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं स्लॉप फॉल्ट्स के साथ। और 3rd इज अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन। अब उसका एक सबडक्शन जोन होता है, उसके अंदर वो एक्टिव सबडक्शन जोन है, वहाँ से भी वो अर्थक्वेक कॉज हो सकता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 6371 किलोमीटर्स टू फॉर्म अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के लिए अगर आप गौर से देखें तो सेंटर जो है वो सेंटर की तरफ जाएं तो हमको 6371 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब अर्थ का सरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचे आज। तो अभी आज के लिए आज इतना ही रखते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। वी विल गो फॉर, मैं थोड़ा इसके एक वीडियो ऐड करूँगा आपके साथ में, तो आपको अच्छा लगेगा और यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा अर्थक्वेक को पकड़ो, अर्थक्वेक को समझो। देन वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द वोल्केनो एंड वोल्केनिक इरप्शंस, व्हाई वोल्केनो इरप्ट, और दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोस कहाँ पर है, और जो जिसको बोलते हैं ना सुप्त, हिंदी में सुप्त बोलते हैं, इनएक्टिव वोल्केनोस, वो कहाँ पर है, ठीक है। क्या इंडिया में कोई वोल्केनो है, इसके बारे में भी आप पता कीजिएगा। माउंट फूजी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनो है, उसके बारे में जाना जाता है, ठीक है, जापान के अंदर है। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, कहीं तो डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब क्या है, वो बैठे हैं पर हैं, उसके अंदर से लावा निकल सकता है कभी भी, दे कैन इरप्ट एट एनी टाइम। और एक्टिव वोल्केनो तो इरप्ट हो ही रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो दे आर फॉर्मिंग। वो इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, आइलैंड्स बनाते हैं, लैंड एरिया बहुत करते हैं, उसकी जो एशेज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर फर्टिलाइज़र है, उसमें से गोल्ड निकलता है, आयरन ओर निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर है, वो सारी चीज़ें हमको अवेल हो जाती हैं। तो एक प्रकार से आप देखोगे तो इट्स अ वेरी फाइन थिंग, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सुनामी। सुनामी के देखिए पिक्चर्स, हाँ यही वीडियो आपको देखने को मिलेगा ऑन इंटरनेट। ये देखिए सुनामी, इट्स वेरी राइट वीडियो, वो जो जापान के अंदर आई थी सुनामी। सुनामी का इफेक्ट इंडिया में भी हुआ था और बहुत ज़बरदस्त हुआ था। जो इंदिरा पॉइंट है वो तो डूब ही गया था, इंदिरा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है
वो सबमर्ज हो गया था वाटर के अंदर, ठीक है। और अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। देन फ्लड के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज़ ऑल्सो राइट फोटोग्राफ। फ्लड कैसे आते हैं, फ्लड के रीज़न क्या हैं, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से बहती हैं, तो उसके क्या क्या फॉर्मेट हैं बहने के, और उसका रीज़न क्या है फ्लड आने का, ठीक है। जैसे गंगा यमुना है, माचू है, तापी, कोशी, ये फ्लड कहाँ पहुँचाते हैं? गंगा यमुना नॉर्थ इंडिया के अंदर करती है, ये किया था। माचू जो रिवर है मोरबी के अंदर उसने नुकसान पहुँचाया था। देन तापी है सूरत के अंदर 2006 में, कोशी है जो 2008 बिहार के अंदर, ठीक है। फैमिन तो बहुत ही डिज़ास्ट्रस है, फैमिन यानी कि सूखा पड़ना, ठीक है। फिर साइक्लोन के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग टाइप के साइक्लोन्स आते हैं इंडिया के अंदर और क्यों आते हैं, रीज़न क्या है उसके, वो सब देखेंगे। देन फॉरेस्ट फायर के बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट फायर के बारे में पहले ही बात की हमने। देन लैंडस्लाइड, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है पर होता है, अभी भी होता है, पिछले साल भी हुआ था लैंडस्लाइड मुंबई के अंदर एंड पीपल डाइड। लैंडस्लाइड पूरी ज़मीन खिसक जाती है। अब इसको कुछ ऐसे हैं जिनको रोका जा सकता है, अब उनके रेमेडीज़ भी हैं हमारे पास, और कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता, विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट ऑल। रोका जा सकता है मतलब उसके प्रिकॉशंस लिए, अर्थक्वेक का तो कोई प्रिकॉशन है ही नहीं, वी कांट स्टॉप इट एट ऑल, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू conclude this chapter for today. Learn more, understand more. If you've got any kind of doubts, please feel free to ask. We are always there for you. Thank you and have a very nice day.